All right. Assalamu alaikum students. Um, मेरी आवाज़ साफ सुन सकते हैं और स्लाइड भी देख सकते हैं. ओके. बताएं आप अबरार यस अबरार सर, आपकी आवाज़ आ रही और स्लाइड भी. है। यस सर, स्लाइड्स पे आ रही ओके. ऑल राइट. As I told you last time, that because now we have caught on our lost classes of DL. So our now routine will be as per our programming schedule for the theoretical classes as well as for the lab classes. So we'll follow that, and according to that now we will have the internet class today and DL class tomorrow. Okay, the last time what we were discussing, we were trying to connect our physical systems and devices, the Raspberry Pi, and with the web environment. So we want to integrate, as I said, the word Internet of Things. We looked at things in the last so many classes. We looked at things and then we moved on to the internet. When we moved on to the internet, we divided our learning parts into these three topics. First topic was subscribing of web services for Raspberry Pi. In that, we used a weather information source. Somebody else has built a web service, and we are getting that data down to our physical device and displaying it there, which you showed in your last lab. Then the present, your lab, the next lab in which you will be, what we had done was, we have built a web server using Raspberry Pi, and now this acts as a server for being accessed from anywhere through your browser. And now from your own web server, you get the information and maybe as a static HTML page and then display it. Or same thing, not or, in the next phase, you will get that data. In this lab, you will just show the data which your server had and you got it in your browser and you displayed it on your Raspberry Pi system, and a physical Raspberry Pi system. The next phase, you will use that your web server, instead of having its own page, it can get data from other web services, as we did above, in the this first topic, from the web services of another source and display. And in the third phase, you can get your own physical system which senses, let's say, information about data, and you put it on the web server and display. So ये हमारे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पब्लिशिंग ऑफ वेब सर्विसेज बाय रास्पबेरी पाई. इसका मकसद ये हुआ कि हम ऑन ग्राउंड फिजिकल डिवाइस रास्पबेरी पाई को यूज करके we will have some data which we will publish onto a web server, make it available maybe as a dashboard as we do. So we will publish our sense data to a web सर्विस. पहले पॉइंट में हमने क्या कहा था? पहले में we subscribe to the web service. There was a web service. We got the data from there and displayed it on the ground. Now we are saying that we have data on the ground
on our physical embedded system, Raspberry Pi, and we want to display this data on IoT dashboard uh, in the internet, so that you can put that data from many such physical locations. You can integrate that data. You can access it from anywhere. You can make it public. You can keep it private. So you can, now it is the direction is otherwise. ये पब्लिशिंग ऑफ वेब सर्विस में हम दो एस्पेक्ट देखेंगे। एक तो ये तरह करेंगे कि वेब आपके जो रास्पबेरी पाई में डाटा है उसको हम भेजेंगे टू अ क्लाउड बेस्ड वेब सर्विस एज एंड शो इट एज ए डैशबोर्ड। और दूसरा हम ये भी करेंगे इसी लर्निंग में इसके साथ इंटीग्रेट करके कि आपका अगर ये डाटा विच यू आर सेंडिंग on the web and it can be seen or monitored by anybody. If you want to raise some alarm on this data automatically, instead of that you look at the website and see the data and you find the data is something is wrong, maybe some intruder is there, some temperature is going out of control or things like that, you will put you will use a net-based messaging service so that this physical monitoring device should send an alert or alarm message to your mobile or a phone mobile. ठीक? तो एक हम इसमें देखेंगे कि किस तरह ये फिजिकल डिवाइस सेंस करेगी अपनी सराउंडिंग्स को और उसके बारे में इंफॉर्मेशन एक अवेलेबल क्लाउड सर्विस पर या वेब सर्विस पर उसको मुहैया करेगी। और साथ ये कि अगर अलार्म या अलर्ट रेस करना हो तो वो आपके मोबाइल पे अलार्म या अलर्ट रेस करेगी। तो दिस इज अवर first two we have done. So this is our this third topic which we are going to discuss today. Okay. अच्छा, इसके लिए इस पार्ट को जैसे मैंने बताया दो हिस्से हैं। ये एक्चुअली हम कंटिन्यूएशन रख रहे हैं, जो काम हम करते जा रहे हैं पीछे उसी से। ये हमने लास्ट जब वेब सर्वर की भी बात की थी, इनफैक्ट पहले पॉइंट से शुरू किया था कि हम एक होम सिक्योरिटी डैशबोर्ड बना रहे हैं। उसके लिए हमने पहले फर्स्ट ऑप्शन को यूटिलाइज किया, उसके लिए फिर हमने सेकंड ऑप्शन को यूटिलाइज किया। अब हम ये थर्ड ऑप्शन में भी उसी को एनहांस कर रहे हैं। जो होम सिक्योरिटी डैशबोर्ड हम बना रहे हैं अपने घर की सिक्योरिटी के लिए, जो हमने पहले भी दिखाया है और डिस्कस किया है, उसको एक लेवल और आगे अब हम ले जा रहे हैं बाय यूजिंग दीज फैसिलिटी। और वो आगे ले जाने वाली जो डिस्कशन है उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि हम ये जो यहाँ पे मैं लेट मी यानी अब थोड़ा सा इस बात को जो मैंने अभी जनरल कही थी, हल्का सा हम उसको फ्यू टेक्निकल वर्ड हम उसको कर रहे हैं। बात वही दो जनरल चीज़ें हैं। एक तो हम ये कह रहे हैं कि हम वेब या क्लाउड सर्विस में जो आईओटी डैशबोर्ड है हमने उसको यूज़ करना अपने मकसद के लिए सीखना है। ठीक, उसकी एग्जाम्पल में हमने देयर आर सो मैनी आईओटी डैशबोर्ड्स। हम पहले भी आईओटी सर्विस प्रोवाइडर्स भी डिस्कस कर चुके हैं और इसी तरह उन सब के दे आर लॉट ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ आईओटी डैशबोर्ड। नेचुरली हमारी प्रेफरेंस सम सिंपल फ्री ऑप्शन टाइप चॉइसेस हम उसमें ले रहे होते हैं। तो उसमें से एक अच्छा, आप दूसरे भी चूज कर सकते हो इस कैटेगरीज में। एक सिंपल एग्जांपल जो विच वी आर टेकिंग इज फ्रॉम द थिंग्स बोर्ड। ये आईओटी डैशबोर्ड है जो आपको फ्री सर्विस के तौर पर आईओटी डैशबोर्ड की सर्विस देगा इन द क्लाउड और वेब। और इसका जैसे मैंने बताया कि हम
रेस्पबेरी पाई के सेंसर से जो हम डाटा लिया, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि हम कैमरा इंटीग्रेट हमने किया, हमने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर को इंटीग्रेट किया, और इस तरह हमने इधर कैमरा बेस्ड इंट्रूडर और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपके इन योर होम और ए प्लेस और ए रूम आपने सेंस का वो डाटा डिस्प्ले भी आप उस लेवल पर करेंगे, और उसको फिर उसका मैसेज भी हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो उस चीज़ को इस डैशबोर्ड के साथ हम इंटीग्रेट करके और ये डाटा हम वहाँ डिस्प्ले करेंगे। और नेचुरली इसके लिए जो प्रोटोकॉल इस इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होगा फ्रॉम आवर यूनिट टू द क्लाउड, जिस तरह और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हम जानते हैं कम्युनिकेशन के, वेल नोन HTTP हैं, और उसी तरह ही MQTT है, जो इस तरह HTTP प्रोटोकॉल है कि वो एक तरीका है कि आप अपनी एप्लीकेशंस के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज लेते हैं। इस तरह ये एक एनवायरनमेंट के लिहाज से उसकी इम्प्रूव फॉर्म, मोर एफिशिएंट एंड स्मॉलर ऑप्शन MQTT का है, बट इट इज़ लाइक सेंडिंग ऑफ your requests and getting of your responses for the cloud services for IoT dashboards. और ये MQTT क्योंकि जनरल प्रोटोकॉल है, it is used in many places for the cloud services integration, one of the standard protocol, so we will be using that. नीचे इसके बाद दूसरा पार्ट जो मैं मेंशन कर रहा था, ये अगर आपने डाटा है वहाँ पब्लिश कर दिया, डाटा इज अवेलेबल, यू कैन look at that data anytime and see what's happening, but you are all the time away from your home, busy in your work, and you want if there is any alarming thing, so not only that you keep looking at data every time on the web for the status, some kind of alarm should be raised and should be provided to you and get your attention. उसके लिए हम यही इंटरनेट बेस्ड टेक्स्ट मैसेज सर्विस इस्तेमाल करेंगे। अगेन इंटरनेट बेस्ड टेक्स्ट मैसेज सर्विसेज के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। वन ऑफ देम इज दिस Twilio, a very simple, again we'll use it free option and easily integratable। हम इसमें क्योंकि ऐसी बहुत सारी दूसरी चीज़ों के पीछे, यानी कि हम इसके लिए पे करना या कोई स्पेशल फीचर्स को ढूंढना हमारा एम नहीं है। हमारा एम है कि एक सिंपल वर्किंग एग्जांपल ऑफ कॉमन पॉपुलर मोस्टली यूज्ड ऑप्शन, तो वो ये है Twilio। तो इसके ज़रिए से हम अपने ये जो अलर्ट टेक्स्ट मैसेज हैं आपके रास्पबेरी पाई से, जिसका डाटा आप ऊपर IoT डैशबोर्ड पर शो भी कर रहे हो और आप देख भी सकते हो, लेकिन in case of any alarming thing, some intruder has entered your home or some fire is there and temperature has risen and things like that, तो उसके लिए ये नहीं है कि आप अगर डैशबोर्ड आपने नहीं चेक किया तो आप उस वक्त तक पता ही ना चले। ऐसे केसेस में आपको अलार्म मैसेजेस रेज हों फ्रॉम योर दैट सोर्स रास्पबेरी पाई, जो सेंसर जिसके साथ लगे हुए हैं, और आपको आपके मोबाइल फोन पर उसकी अलार्म मैसेज मिल जाए टू ड्रॉ योर अटेंशन फॉर इमीडिएट एक्शन। तो अब अगर हम इसको सिनेरियो को लेट्स से आर्किटेक्चरली इस बात को ड्रॉ करें, तो शायद फिर हमें आगे के कोड वगैरह देखने और समझने में हेल्प मिले। तो हम कह रहे हैं कि ये हमारा ये थिंग्स बोर्ड वाला ये हमारा ऑनलाइन IoT डैशबोर्ड ठीक। अच्छा, इसमें हम अपने वो सारे डेटा वगैरह अपने इससे रास्पबेरी पाई, इस रास्पबेरी पाई के साथ रास्पबेरी पाई, ये हमारा एक किस्म का आप समझे एम्बेडेड कंट्रोलर है हमारे रोल में, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड कंट्रोलर, जिस पर ये हमारे सारे इनपुट्स, सेंसिंग की इनपुट्स, कंट्रोल के आउटपुट्स, सेंसिंग की इनपुट्स, कंट्रोल के आईओ, ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड के साथ आईओ, और यहाँ फिजिकल कंप्यूटिंग के साथ इसके साथ इंटीग्रेशन हमने ये बहुत
काफ़ी सीखी इन आवर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो मे भी हमारे इस केस में कोई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, DHT हमने शायद इसका है, DHT, डेटा फॉर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, या DTH, whatever, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के सेंसर, मे बी कैमरा का सेंसर, इंट्रूडर PIR, एनीबॉडी गेटिंग इन का सेंसर, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। ये मैंने आउट शो कर दिया, कैमरा भी इन है, इस तरह के इससे लगे। ये चीज़ें थ्रू हमारा जो नेट हम बनाते हैं, क्लाउड या आईनेट क्लाउड, इसके थ्रू ये हमारा, इससे हम कनेक्ट कर रहे हैं और इधर ये चीज़ें यहाँ मुहैया कर रहे हैं। ये आपके यहाँ फिजिकल, यहाँ डैशबोर्ड से मतलब है आपने बटन्स और वर्ड्स और वो शो भी कर सकते हैं आप, और इन राइटिंग में भी मैसेज। ये हमारा बोथ वे काम हो सकता है, डिस्प्ले करना है या कोई कंट्रोल इंफॉर्मेशन वापस लेनी है। तो ये हमारा ये पहला काम है, वेब या क्लाउड सर्विस IoT डैशबोर्ड। ये थिंग्स बोर्ड का नाम हमने कहा यूज़ करेंगे। दूसरे केस में हमने कहा ये तो नॉर्मल डिस्प्ले हो रहा है, इसके लिए आप कहीं भी, अब क्योंकि ये IoT है तो आप यहाँ कहीं भी दुनिया में और योर ऑफिस में या इन अदर कंट्री आप बैठे हैं तो आपने अपना ब्राउज़र को ऑन किया और आपने यही इसके थ्रू अपने इस डैशबोर्ड पे अपनी होम का स्टेटस, सिक्योरिटी स्टेटस दे चेक किया, यू आर सेटिस्फाइड, थिंग्स आर गोइंग ऑलराइट। अब लेकिन इसमें जब कुछ प्रॉब्लम्स हों तो आप चाहते हैं कि इट शुड ड्रॉ योर अटेंशन रादर देन एवरी टाइम you will be looking at it with some gaps. You are busy, you may look at it when you are free, but if there is an emergency you would like your attention to be drawn there. तो उसके लिए हमने यही नेट बेस्ड जैसे वाइप वगैरह की सर्विस, वो ये चीज़ जब यहाँ चेक करेगी अपने प्रोग्राम से और समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ range, temperature is rising, intruder has entered, PIR has sent something, ये डेटा ये आपने नेट बेस्ड आईनेट पे या क्लाउड पे आपने इस डेटा को के ज़रिए से ये सर्विस, ये जो इस केस में हमने ये कहा मैसेज, टेक्स्ट मैसेजिंग की सर्विस को आपने यूटिलाइज किया। ये आपका जो हमने कहा ट्यूलियो टेक्स्ट मैसेज सर्विस का सर्वर है विच कनेक्ट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सर्वर प्रोवाइड करता है। यहाँ से आपका वो मैसेज आया, इसके थ्रू इसने ये सर्विस पर आप लेट्स से ये आपको मैसेज भेज देगा, इसके पास आपका डेटा होगा। यहाँ ट्यूलियो का क्लाइंट आप डालेंगे, क्लाइंट आपको ट्यूलियो क्लाइंट की ज़रूरत है, ठीक, और ये ट्यूलियो क्लाइंट, इधर आपका उसका सर्वर, और ये सर्वर आपके इस मोबाइल, इस योर मोबाइल इसके पास है, इसके पास इसने, इसमें क्या होगा कि ये एज ए क्लाइंट अपने आप को रजिस्टर करेगा रास्पबेरी पाई विद दिस एंड इट विल प्रोवाइड दैट नंबर टू दिस सर्वर, और फिर जब ये इसका मैसेज इसके पास आएगा तो ये आपको उस मोबाइल नंबर पे मैसेज भेज के इन्फॉर्म कर देगा। तो ये हमारे हैं कंपोनेंट्स ऑफ टुडेज या नाउ दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन, जिसमें हम कह रहे हैं पब्लिशिंग ऑन द वेब सर्वर एंड गेटिंग द मैसेज। अब हम इनके अलग अलग हर एक पार्ट को कोडिंग वाइज, इंस्टॉलेशन वाइज और इस तरह की अब डिटेल हमारी होगी, बट दिस इज आवर आर्किटेक्चर, दिस इज आवर टोटल कॉन्सेप्ट, ठीक। अब हम इनके हम देखेंगे कि इस पे क्या, इसके साथ इंटीग्रेट होने के लिए क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके साथ रजिस्टर करने के लिए क्या तरीका है, ये किस तरह मैसेज को कम्युनिकेट करता है, इसने सेंसिंग में कैसे तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके
और अपने होम सिक्योरिटी डैशबोर्ड के लिए एनहांसमेंट करनी है। तो ये अब इनके अलग अलग पार्ट्स को हम देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि पहला पार्ट कि आपका सेंसरी डेटा को क्लाउड बेस्ड सर्विस के साथ हमने करना है। और हमने क्लाउड बेस्ड में बताया कि हम थिंग्स बोर्ड वेबसाइट यूज़ करेंगे और उस पर जो डेमो एनवायरनमेंट है उसको यूटिलाइज करेंगे। सेटिंग अप हम उस पर अकाउंट बनाएंगे थिंग्स बोर्ड पर के वेबसाइट पर, और फिर हम उसके साथ उस ऑनलाइन डैशबोर्ड के साथ MQTT प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे फॉर पब्लिशिंग आवर डाटा ऑन इट, एंड उस एनवायरनमेंट में हम डेमो एनवायरनमेंट इस्तेमाल करेंगे अपनी इस एग्जाम्पल। ये हमारा सिनेरियो है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स का। अब इसके पीसेस जो है, एक ये है कि ये प्रोटोकॉल हमने यूज़ करना है इसके लिए MQTT। तो जाहिर है ये इस्तेमाल करना है तो उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हमें करनी चाहिए, ताकि जब हम इसको अपने कोड में इस्तेमाल करें तो ये उसके हमारी फंक्शंस को पहचान जाए एज यूजुअल। तो डैशबोर्ड से जो थिंग्स बोर्ड का है, तो लाइब्रेरी वी डू दिस थिंग्स कि हम एक टर्मिनल को अपने मेन टूल बार से हम ओपन करें टर्मिनल अप्लायंस फ्रॉम द मेन टूल बार, और फिर ये रूट लेवल एक्सेस फॉर इंस्टॉलिंग ऑफ लाइब्रेरीज, और रूट लेवल एक्सेस के लिए सूडो का वर्ड हम यूज करते हैं। पिप ये फॉर इंस्टॉलिंग अनइंस्टॉलिंग एंड डिपेंडेंस ऑफ द लाइब्रेरीज के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम पाइथन 3 के लिए कर रहे हैं तो पिप 3 कर रहे हैं। इंस्टॉल PHO MQTT, तो हमने MQTT की इंस्टॉलेशन। अच्छा, तो आप देखेंगे कि वो लाइब्रेरी इंस्टॉल का आपको पता चल जाएगा, हो गया इंस्टॉल। अच्छा, अब हम एक अकाउंट सेट करेंगे इस पर, और उस पर डिवाइस क्रिएट करेंगे। यानी अब हमें क्योंकि MQTT के जरिए कनेक्ट होना है, हमने अपने रेस्पबेरी पाई को कनेक्ट करना है, और क्योंकि हमने IoT डैशबोर्ड जिसका नाम थिंग्स बोर्ड है उसके साथ इंटीग्रेट करना है, तो हमें जाहिर है उसके ऊपर ये थिंग्स बोर्ड पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि दैट विल बी आवर सर्वर फॉर प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटीज। So here is some detail of opening, setting up of account and creating of device. असल में हम ये अकाउंट बना क्यों रहे हैं कि वहाँ हमने एक डैशबोर्ड सेटअप करना है। जो जो चीज़ें हम अपने इस उससे भेजेंगे वो चीज़ें वन बाय वन वहाँ पर इनफैक्ट पिक्टोरियली भी डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि डैशबोर्ड है तो इसमें सहूलतें हैं कि हम पिक्टोरियली डायल्स बटन्स पिक्चर्स के जरिए से अपनी आउटपुट्स जो यहाँ से जाएंगी उनको डिस्प्ले कर सकें। तो हमें उसमें सहूलत है कि यू कैन क्रिएट डिवाइस एंड शो योर डाटा, बट ऑफ कोर्स यू विल फर्स्ट ओपन एन अकाउंट ऑन दिस। ओके, तो ये उसमें उसके स्टेप्स है कि ये हमारा थिंग्स बोर्ड वेबसाइट www.thingsboard.io है जिसको हम यूज कर रहे हैं। आप वेब पर यू विल एक्सेस दिस वेबसाइट, तो उस पर आप दिस नाउ ट्राई इट नाउ बटन, क्योंकि वो दे से ओके यू कैन ट्राई दिस सर्विस फॉर दिस टाइम, so much will be free, after that you will provide you have to pay or things like that. So you try it now button, वो जो टॉप स्क्रीन के टॉप पर है उसको आप यूज करेंगे। और फिर थिंग्स बोर्ड की जो कम्युनिटी एडिशन का सेक्शन है उसमें लाइव डेमो के बटन को यूज करेंगे।
तो ये इंस्टॉल और ये लाइव डेमो अब हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर जैसे ही हम ये बात करेंगे तो वो आपको मौका देगा कि साइन अप कर लें लाइक ऑल अदर प्लेसेस, ये होगा। तो इट विल प्रेजेंट यू विद दिस साइन अप विंडो। आप इसमें अपने डाटा एंटर करेंगे टू सेट अप योर अकाउंट, और फिर आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। तो फिर आपको ये डायलॉग बॉक्स नजर आएगा कि ओके अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, और फिर वो कहेगा ओके नाउ यू कैन लॉग इन। आपका अकाउंट बन गया, अब आप लॉग इन करके सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आपने लॉग इन किया और फिर आपको ये नजर आएगा मेन्यू। वो मोबाइल में लेना। ऑलराइट, आपको you can hear me and you can look at the slide. Both are fine with you? Okay? हेलो, आपको आवाज़ मेरी सही आ रही है और स्लाइड आपको नज़र आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ भी आ रही है और स्लाइड्स भी आ रही हैं। ओके, नहीं, अच्छा। तो हमने कहा कि फिर हम इस तरह इस पर लॉग इन हो गए, और फिर ये आपको हमें ये मेन्यू शो कर रहा है स्क्रीन पे, जिसमें ये जो थिंग्स बोर्ड की फैसिलिटीज़ के ऑप्शन है। सम ऑफ देम हम अपने अभी कोड के दौरान भी यूज़ करेंगे, मगर सबसे इम्पोर्टेंट इनमें से ये तो होम और प्लगइन्स कस्टमर। लेकिन ये हमने डिवाइस क्रिएट करनी है इस पर,
और फिर उस डिवाइस में अपने जो भी इंडिकेटर्स यूनिट्स शो करने हैं डिस्प्ले करने के लिए उनको उसके साथ ज्वाइन करना है। बाकी फिर ये लाइब्रेरी है, वो जो आइटम्स के लिए नीचे उनकी शेप को सिलेक्ट करने के लिए कि किस किस्म का डायल या बटन या आपको सिलेक्ट करना है उसकी फैसिलिटी है। मैं इसको ओके, तो ये वो उसके लिए है। तो ये अभी हमें डिवाइस इस पर बनानी है थिंग्स बोर्ड पर। तो वो ये है डिवाइस का ये ऑरेंज थिंग विद साइन इज अवेलेबल टू इंडिकेट कि भाई यहाँ पर डिवाइस है जो आप ऐड कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इट विल मीन यू वांट टू ऐड दिस डिवाइस। ओके, फिर आपने ये आप अब डिवाइस के लिए पैरामीटर दे रहे हैं। ये ऐड डिवाइस का आपको मेन्यू मिल जाएगा कि आप उसको क्या नाम देना चाहते हैं और टाइप क्या देना चाहते हैं और ये कि क्या ये गेटवे है कि नहीं। तो ये इसके आपने हमने अपने इस केस में कि हम इसको हम जैसा हमारा सिस्टम टेम्परेचर मॉनिटरिंग के हमने वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और वो चीज़ों का है, तो हमने इसको कहा है रूम की कंडीशंस। बहुत सारी चीज़ें इंट्रूडर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, तो हम रूम कंडीशंस का नाम इट इज़ योर नेम यू कैन गिव इट इन दिस केस रूम कंडीशन इस्तेमाल किया। डिवाइस टाइप डिफ़ॉल्ट जो भी उसके हैं अवेलेबल हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारा गेटवे नहीं है, इस दिस आवर डिवाइस इज़ नॉट अ गेटवे। वो अगर गेटवे होता तो हम इसको यहाँ टिक करते हैं, जो हम नहीं करेंगे। और ये ऐड किया तो आपकी डिवाइस ऐड हो गई इस डैशबोर्ड पर। थिंग्स बोर्ड IoT डैशबोर्ड, उस पर आपने डिवाइस ऐड कर दी। ओके, तो अब ये आपको जब आपने ऐड की तो ये बन गया। आपको नज़र आ जाएगा कि भैया आपने रूम कंडीशंस के नाम से एक डिवाइस बनाई है विच इज़ दिस डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप है। और हियर इज ये बॉक्स आपको उसका नज़र आ जाएगा जब आप ये काम करेंगे। तो फिर आपने ओके एक्सेस कोड आपको चाहिए अब इसके लिए। तो आप उसके पर ये कॉपी एक्सेस कोड टोकन जैसे आपका पिछले उसमें भी व्हेन वी वर डूइंग दैट वेदर थिंग एंड यू पीपल वर नॉट हैविंग दैट की और वो आपने कोड में नहीं डाला हुआ था और फिर हसीब टोल्ड यू और आपने वहां से देखा और उसको कोड में कॉपी कर लिया डाल इस दैट कि ये अब आपको अपने इसके लिए एक्सेस कोड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर है ये एक्सेस कोड इधर यू कैन कॉपी इट फ्रॉम हियर, ये बटन अपीयर हो जाएगा फॉर द एक्सेस कोड। तो आपने थिंग्स बोर्ड पे अकाउंट बनाया है और फिर एक नई डिवाइस थिंग्स बोर्ड में बना ली है और फिर आप डिवाइस को यूज़ करेंगे टू रिट्रीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रास्पबेरी पाई और वहाँ पर हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे इसकी वैल्यूज़ का। ये हमने प्लान था और ये हमारा भी यहाँ तक हम पहुँचे। ये हम स्टेप बाय स्टेप उसके डिटेल भी डिस्कस कर रहे हैं। तो समटाइम्स किसी छोटे से ऐसे पॉइंट पर आप जैसे लास्ट टाइम यू हैड डन प्रिटी फाइन द प्रोजेक्ट मगर खाली वो की को उधर से कॉपी ना करने और एक्सेस की ना डालने से यू गॉट स्टक अप फॉर दैट। बट इन एनी केस ये फिर भी हमेशा जब भी आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे तो ये एक्सपेक्टेड होगा कि रेलेवेंट टूल्स और लाइब्रेरीज के डेटाज आप रेफरेंस डॉक्यूमेंट से देखेंगे और यूज़ करेंगे और उसके लिए स्ट्रगल करेंगे। मतलब एवरीथिंग 100% अगर आपके पास रेडीली अवेलेबल हो आप खाली उसे कट एंड पेस्ट करो और वो चल जाए तो देर इज़ नो जॉय इन डूइंग ए प्रोजेक्ट एंड देर इज़ नो लर्निंग। ठीक, हम अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज पर है आपके लिए ये फील्ड नया है तो हम काफ़ी कुछ आपको रेडीली भी देते हैं प्रोजेक्ट में। हम कहते हैं यार हेयर इज़ द फुल कोड, हेयर इज़ द फुल एग्जांपल, बट वी डू एक्सपेक्ट कि आप उसमें रिलेटेड कोई अगर कोई चीज़ ऐड करनी या कोई चीज़ सर्च करने की ज़रूरत है तो आप रेलेवेंट मटेरियल्स पर जाएं, वहाँ से वो चीज़ें सर्च करें, यूज़ करें और उसके लिए एफर्ट करें। वो फिर
डोंट एक्सपेक्ट कि वो भी आपको सर्च भी करके दे दिया जाए। जैसे हमें लास्ट टाइम थोड़े से कुछ एस्पेक्ट प्रोजेक्ट के हो रहे थे कि जिसमें हम कह रहे थे कि यार ये डाटा है, इसको हमें शफल करना है, वहाँ पर आपके पास तो ये इकट्ठे डाटा है, तो यू शुड फाइंड एन ऑप्शन फॉर शफल। और वो आप यू आर आस्किंग अस कि यार आप ही हमें बता दें, ये भी दैट्स नॉट द राइट वे। देर आर ऑप्शन जो आपने सर्च करने जब आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमने आपके लिए बाद में सर्च किए, तो देवर सम वेरी सिंपल सॉल्यूशंस फॉर दैट। वो अब आपको कम्युनिकेट किए होंगे हसीब ने, अगर somebody still has stuck up into that, ताकि अब नेक्स्ट लैब में आप वो चीज़ें, नया प्रोजेक्ट है नेक्स्ट लैब में, लेकिन वो चीज़ें आप दिखा सकते हैं क्योंकि वो रेडीली बाकी आपके पास कोड मौजूद था और आप खाली ये उसको बड़े डाटा को ऑटोमेटेडली शफल नहीं कर पा रहे। ठीक, तो इसलिए हम उस चीज़ को हमने आपको वो शफल करने का ऑप्शन आपके पास जहां आप डिस्प्ले कर रहे थे सॉफ्टवेयर में, और हम आपसे कहते हैं इसको शफल करो, तो राइट देयर उसमें बटन उस शफल का मौजूद था। ठीक है, जो वी फाउंड दैट के इट वाज देयर। जो आप ये सॉर्टिंग वगैरह में होता है डिफरेंट डाउन टू अप टू डाउन, और इस तरह जैसे एक्सेल में हमारे पास होते, तो इसी तरह वो सॉर्ट उसमें शफल का बटन मौजूद था, जिससे आप ऑटोमेटिकली बड़ा डाटा जो वहाँ देख रहे हैं उसको शफल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन शफल का हमने वो इंस्ट्रक्शन दी, वो आपको साइट पे भी डाल दी कि शफल की बकायदा हमने वो यूज़ भी किया। हमने चॉइस को आपको जब पढ़ाया था तो चॉइस को डिस्कस किया था, चंद एक हमने फंक्शन डिस्कस किए हैं, मगर वो लाइब्रेरी में जो उसका python.org या numpy.org हैं, उनमें वो सब डिटेल्स मौजूद होंगी। जब आपको ज़रूरत होगी तो आप वहाँ जाके कंसल्ट करोगे और वहाँ से निकालोगे। तो वी लुक्ड एट द लाइब्रेरी ऑफ numpy.org, और उसमें हमें दोनों ऑप्शन डॉट शफल भी नज़र आया, मिल गया, जिसके ज़रिए से आप रैम में जब डाटा ले गए हो तो वहाँ शफल कर सकते हो। और फिर डॉट चॉइस भी है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं, किस रेशो से आप उसको रैंडमनेस को लाना चाहते हो चूज़ करने के लिए। लेकिन आपका जो अभी कॉन्टेक्स्ट था उसमें वो सिंपलर और डायरेक्ट यूजफुल डॉट शफल का मेथड ही है। ठीक है, तो दोनों जगह ऑप्शन मौजूद हैं, यूज इट। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि ये चीज़ें आपको दूसरे लोग ढूंढ के देंगे। जब आप प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको वो स्ट्रगल्स करनी चाहिए कि हाउ टू यूज योर टूल्स, हाउ टू सर्च फॉर सर्टन चॉइसेस विच यू नीड। मतलब कुछ चीज़ें उस बुक ने और हमने और स्लाइड्स ने आपको 100% दे दी, कुछ के लिए आपको एफर्ट एक्सपेक्टेड है, सो डू इट। और आइंदा प्रोजेक्ट्स में भी हम वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे। ओके, अच्छा, अब हम ओके, ऑलराइट, अच्छा, अब हम वी वर हियर कि अब हमने सेंसरी डाटा को रीड करना है और पब्लिश करना है टू थिंग्स बोर्ड। थिंग्स बोर्ड पर हम पहले ही डिवाइस, हमने वहाँ अपना अकाउंट खोला और अकाउंट खोल के लॉगिन किया। लॉगिन करके हमने उसका आपके पास एक्सेस कोड आपने लिया, जो हम आगे कोड इस्तेमाल करेंगे, और आपने वहाँ पर एक डिवाइस जनरेट की, उसका आपने रूम कंडीशंस नाम रखा और डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप यूज़ की। और अब हम सेंसरी डाटा को इस डैशबोर्ड पर, जो हमारे केस में थिंग्स डैशबोर्ड थिंग्स बोर्ड है, इस पर अब अपने रास्पबेरी पाई से जो आपके पास डाटा है इसको आपने वहाँ पब्लिश करना है। ये हम नेक्स्ट स्टेप में, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड एज यूजुअल आल्सो गिव यू द कोड, ताकि आपको एग्जाम्पल राइटिंग ऑफ थिंग्स की डिटेल भी आपके पास हो और आप उसको समझ के यूटिलाइज करें। एम ये है कि नया होने से ये बेनिफिट है कि शुरू के प्रोजेक्ट्स में हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दें,
लेकिन उस सॉल्यूशन को आप समझ के यूज करें, उससे फायदा ये होगा कि उसमें जहां आपको ऐसे चेंजेस की जरूरत पड़ती है, जिस तरह हमें भी पिछली शफल की पड़ी, तो अगर आपको समझ है तो वो चेंज आप राइट प्लेस पे ढूंढ के इस्तेमाल कर सकते हो, ये मकसद है। तो ओके, हियर इज अवर एग्जांपल कोड फॉर इट। और अगेन वही हमने जो होम सिक्योरिटी डैशबोर्ड पीछे बनाया हुआ उसी को हम एनहांस कर रहे हैं, और इस पे हमने सर्किट भी और कोड भी इन दोनों को दिखाना है। और आपने इसके अंदर वो DHT11 सेंसर, जिसकी मैंने जब सर्वर का बात कर रहे थे और ये बनाया था, तो उसको मैंने डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया था। GPIO पिन के इस केस में हम पिन 19 पर उसको कनेक्ट कर रहे हैं इस कोड में, तो इट कैन बी कनेक्टेड ऑन एनी GPIO पोर्ट। ठीक, तो ये काम हम कर चुके हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं और उसकी डिटेल अब हमें पता है। ठीक, ओके। तो एज यूजुअल आप वही थोनी और अ, अच्छा, इसका नाम अब क्योंकि आप अपने प्रोटोकॉल के एस्पेक्ट को भी इसमें डालोगे, तो ये मर्जी है आपकी, ये आपका नाम है। आप एक पाइथन प्रोग्राम रख रहे हो, डॉट पाइथन, ये एसेंशियल है कि आपकी फाइल डॉट पाइथन की हो, ताकि जब आप इसको कॉल करोगे तो वो इस एनवायरनमेंट में इसको पहचान के इस तरह, क्योंकि देयर कैन बी सो मेनी। तो डॉट पाइथन फाइल रख रहे हैं, ये आपका नाम है कि आप क्या रखना चाहते हैं। हमने कहा कि आप क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर 11 हम इस्तेमाल कर रहे हैं और MQTT के साथ उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमने ये नाम चूज कर लिया, दिस इज योर नेम पाइथोनिक में। ओके, एक्सेस कोड जो है आपका, या मेंशन उसने यहाँ भी कर दिया है कि वो आपने एक्सेस कोड को का जो टोकन है, एक्सेस टोकन जो हमने अभी पीछे रीड किया था वो क्लिपबोर्ड से, वो होना चाहिए हमारे पास। अब ये हमारे वो कोड हैं। अगर बहुत सी चीज़ें आपने डिस्कस की हुई हैं, बाकी इसमें हम क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अब MQTT क्लाइंट इसको बनाना है अपने रास्पबेरी पाई को, तो हमारा ज़्यादा फोकस और इंटरेस्ट उसका होगा। बट एनीवे वी लुक एट द होल थिंग इन टोटल। ये हमारा वही टाइम पोर्ट स्लीप लाइब्रेरी आपने ली। ये मैंने आपको बताया था कि जो DHT हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर का डाटा का सेंसर, वो हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस बुक की एग्जाम्पल में भी। इट इज़ एडाफ्रूट, इट्स इट्स a third party making different sensors which were जिनके लिए बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी, ज़ाहिर है थर्ड पार्टी के सेंसर जो होंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक रास्पबेरी पाई में नेसेसरी नहीं है कि उसकी लाइब्रेरी मौजूद हो। तो एक तरीका ये है कि जब आप कोई भी सेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी मौजूद नहीं है RPI के उसमें, तो आप उस थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ पर वो हम कर रहे हैं, एडाफ्रूट का अंडरस्कोर DHT की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। इसी तरह हम क्योंकि MQTT के ज़रिए से रास्पबेरी पाई को एज ए क्लाइंट यूज़ करेंगे टू कनेक्ट टू द डैशबोर्ड, तो हमने यहाँ पर pho.mqtt.client की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया एज, ये उसका स्मॉल नेम MQTT, बट दिस इज व्हाट इट इज। ठीक, और फिर इसमें जावा का इंटीग्रेशन इस MQTT के सिलसिले में इस्तेमाल हुआ हुआ है, इसलिए हमने ये जेसन को भी इंपोर्ट कर लिया। ये हमारी लाइब्रेरीज है फॉर दिस पर्पज। होस्ट हमारा, जैसे मैंने बताया था आपको, ये है डेमो पार्ट ऑफ thingsboard.io, ये हमारा होस्ट है जिससे हमने चीज़ें लेनी। ये हमारा एक्सेस टोकन जो अभी ऊपर भी बात हुई थी, जो लास्ट टाइम भी आपको एस्पेक्ट आया था और अभी हमने उसको लॉग इन स्टेज से जाके देखा कि भाई ये एक्सेस टोकन को नोट किया, उसको आप यहाँ पेस्ट कर दें, ये एक्सेस टोकन आपका यहाँ पे। एडाफ्रूट DHT, ये लाइब्रेरी जो आपने पोर्ट की है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इनका वन टाइप का DHT जो हम भी यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली वी हैव गॉट द सेम वन जो आपको इंटीग्रेटेड मुहैया किया जाता है या है अवेलेबल,
फॉर ऑल ऑफ यू। तो वो हमारा है DHT11। देर आर सो मैनी वर्जन्स ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर विद द सेम पीपल, तो उन्होंने उसको डॉट से करके आइडेंटिफाई किया हुआ है उसकी पर्टिकुलर टाइप ऑफ दैट। तो उस लाइब्रेरी से इस पर्टिकुलर डिवाइस को आपने, ये क्लास है, इससे आपने ऑब्जेक्ट बनाई या इंस्टेंस बनाया इस क्लास का, जिसका नाम आपने DHT सेंसर रखा। ये हम रेगुलरली कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द क्लास अप्रोच। हमने पहले पाइथन में क्लास सीखी थी और हमने हमारा यही इरादा था कि ईजीएस्ट वे इज कि हम क्लास बेस्ड मॉड्यूलर तरीके से अपने कोड्स को लिखें। तो हम वही कर रहे हैं थ्रू आउट एवरीवेयर। तो हमने यहाँ इसको एक इंस्टेंस बना लिया जिसका नाम हमने DHT सेंसर रखा है। और एज यूजुअल जैसे हम LED के लिए भी पिन असाइन करते थे, और इसी तरह हमने इस सेंसर के लिए भी पिन नंबर 19 IO के GPIO 19 को चूज़ किया है फॉर दिस पर्पस। क्योंकि ये जो हमारा सेंसर है DHT सेंसर या एडाफ्रूट या एनी, इसके नॉर्मली जिस तरह हमने ये इस तरह की चीज़ टिपिकल होते हैं ये सारे, इसका उस पर आइडेंटिफाइड भी होता है। आप उसके रेफरेंस इंफॉर्मेशन से भी देख सकते हैं कि उसके अंदर ये 3 चीज़ें एसेंशियली मौजूद होती हैं। ऐसे जो भी सेंसर हैं कर रहे हैं, ये 3 चीज़ें, एक पावर सप्लाई कनेक्ट उस पर होनी चाहिए, ये नॉर्मली इस तरह की कोई चीज़ होगी। चलिए मैं इसको इंटरनल के नहीं बनाते, वी कुड हैव ए रजिस्टर शोन हियर वेरिएबल रजिस्टर, मगर हम ये कहते हैं कि ये इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया सप्लाई, पावर सप्लाई। एक पिन है जिस पे लिखा होगा 5 वोल्ट या VCC का टर्म अक्सर इस्तेमाल होती है चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक्स की पावर सप्लाई को शो करने के लिए VCC का एक बड़ा ट्रांसिस्टर वाले उससे डोमेन से ये पॉपुलर वर्ड है। VCC कई दफ़ा लिखा होगा, कभी लिखा होगा V+ और आगे 5 वोल्ट्स। तो यहाँ आप वो सप्लाई 5 वोल्ट्स जो हमारे GPIO कनेक्टर पर भी पिन नंबर 2 प्रोबेबली टॉप राइट उस पर मौजूद है, वो आप यूज़ करोगे। यहाँ पर आप अर्थ, ये मैंने ड्रॉ कर दी, जो ग्राउंड पिन्स हैं आपके उस पर उसको यूज़ करोगे, सिस्टम ग्राउंड एंड रास्पबेरी पाई ग्राउंड। इधर एक लाइन, 3 लाइनें इस पर है, इस पर एक 3rd लाइन जो सिग्नल के लिए, सिग्नल या डेटा इंफॉर्मेशन, यानी वहाँ वो तो पावर सप्लाई है जो इस चीज़ के जो अंदर है, उसके अंदर जो कुछ मौजूद है, मे बी ट्रांजिस्टर है, कोई सेंसर है, उसको, उसके सर्किट को पावर मुहैया करने के लिए सप्लाई है। फिर उसके रिजल्ट में जो आउटपुट आपकी निकलेगी वो ये है सिग्नल पर, ये डाटा लाइन है। इस पर आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और ये आउटपुट्स मिलेंगे। तो ये 3 पिन के साथ इस तरह है। ओके, तो अब हमने जब ये इसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब हम इसके सेंसर के डाटा को एक डायरेक्टरी में रखना चाहते हैं, ताकि हर जो डाटा है उसका नेम भी हमारे पास हो और उसका वैल्यू भी हो। तो की वैल्यू फॉर्म में हमें ज़रूरत है इसको करने की। ओके, तो ये हमारी एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी में 2 है की वैल्यू पेयर, ये की है टेम्परेचर स्ट्रिंग, ये दूसरी की है ह्यूमिडिटी, ये कॉमा। इस टेम्परेचर की आपने इनिशियलाइज्ड वैल्यू 0 इधर भी और ह्यूमिडिटी 0 डाल दी। बाद में आप इस की को सिलेक्ट करके इस डायरेक्टरी के यू कैन पुट द डाटा, जैसे हम पहले करते रहे जब हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले और अल्फान्यूमेरिक डिस्प्ले पे भी काम किया। ठीक, तो हियर इज द डायरेक्टरी जो आपने सेंसर डाटा फॉर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बनाई, इनिशियलाइज कर दिया 0 पे।
अब ये है जो हमारा मेन एम था कि यार हम इसमें MQTT क्लाइंट के तौर पर अपने रास्पबेरी पाई को इस्तेमाल करें ताकि वो थिंग्स बोर्ड जो IoT डैशबोर्ड है उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। तो ये हमने किया। ये ऊपर ये लाइब्रेरी MQTT की थी, तो MQTT डॉट क्लाइंट, उसमें क्लाइंट मेथड को हमने लिया और इसको इंस्टेंशिएट कर दिया एज ए क्लाइंट। ये हमारा इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट का नेम है क्लाइंट एज यूजल। इस क्लाइंट को जो अभी हमने बनाया, इस क्लाइंट के साथ जो ये मेथड है जिसमें ये पासवर्ड वगैरह को सेट करने का है, यूजर नेम पासवर्ड सेट, ये मेथड है। अपने इस ऑब्जेक्ट पे हमने क्लास के इस मेथड को कॉल किया और वो सेट करने के लिए इट नीड्स वन पैरामीटर विच इज दिस एक्सेस कोड, और ये वो है जो हमने हासिल किया हुआ था और वी वर रेडी कि जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे एज ए क्लाइंट तो हम ये एक्सेस कोड इस्तेमाल करेंगे। ओके, आफ्टर वी हैव गॉटन दैट, अब हमारा ये सिंपल सिंपल कोड है फॉर दिस। ये एक हमने कंटिन्यूस लूप डाल दिया। वाइल ट्रू का मतलब ये होता है कि आप कंटिन्यूस लूप में हैं जब तक कि आप उसको इंटरप्ट या ब्रेक ना करें किसी रीज़न पे, आप इस लूप में कंटिन्यूस चलेंगे, विच मीन्स वी वांट टू कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड at regular intervals you want to set the data to the dashboard for updating data। डाटा भेजना है मगर उसको एक डिसेंट गैप के बाद उसे अपडेट भेजने हैं। ये काम आपने करना है इस अपने रास्पबेरी पाई का ये डाटा, जो इस केस में हम फिलहाल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं। तो आपने ये किया, वही पहले भी मैंने आपको ये दिखाया था कि एडाफ्रूट DHT का मेथड है रीड रीट्राई, यानी ये अपने डाटा तो इसके साथ कनेक्टेड है टेम्परेचर का कंटिन्यूसली, तो जब भी कभी आप रिकैप्चर या अपडेट करना चाहते हैं तो आप कहते हैं रीट्राई। ठीक, इसलिए रीड रीट्राई मेथड, रीड द डाटा अगेन फ्रेश इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आपने ये DHT सेंसर और ये उसका पिन नंबर, ये हमारे दो चीज़ें हमने पहले से ही ये कर दिया था। ये हमारा DHT सेंसर था जिसको हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये क्या है, और ये उसका पिन नंबर है ताकि आप कोड उसके मुताबिक आगे समझेगा चीज़ों को। तो ये जब हमने इससे रीड किया तो हमें जैसे मालूम है कि पाइथन और इन चीज़ों में हमें दो पैरामीटर्स पे भी हम कॉपी इस तरह कर सकते हैं, इट अलाउज अस। तो इधर से जो ये डाटा इसने जो सेंस रीट्राई किया और जो डाटा आया उसमें से उसने पहला डाटा ह्यूमिडिटी को, दूसरा डाटा टेम्परेचर को असाइन कर दिया, ये जो हमने यहाँ वेरिएबल डाले। ओके, अब हम कह रहे हैं जस्ट टू सी, जैसे हम कहते हैं बीच में आप अपने प्रोग्राम की चेकिंग के लिहाज से भी और अदर इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी आउटपुट पे प्रिंट भी करके हमें पता चल जाए कि यहाँ तक हमने जब सेंस किया डाटा इट वाज करेक्ट एंड वी कुड प्रिंट इट एंड इट वाज ए रेलेवेंट डाटा फ्रॉम आवर सेंसर। तो ये उसने, जैसे हम आपको भी बताते हैं एवरीबॉडी डज दैट, इसने वो प्रिंट स्टेटमेंट डाली जिसमें उसने डॉट फॉर्मेट वाले ऑप्शन को यूज़ किया है, और ये कोटेशन कोट मार्क्स में ये स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में उसने आइडेंटिफाई दो जगहें की भी हैं, एक ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, और आगे वो दो वेरिएबल्स मेंशन कर दिए हैं जो इस जगह लिखे जाएंगे और आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो इस जगह लिखने के लिए दो हैं, वो ये हैं जो आपने इधर एक्वायर किए थे। तो अगर ये यहाँ वो वैल्यूज आ जाएंगी तो इस सेंटेंस में टेम्परेचर कॉलन और ह्यूमिडिटी कॉलन के में वो वैल्यूज इंजेक्ट हो जाएंगी इन कर्ली ब्रैकेट्स पे। ये पाइथन का एक तरीका है। तो आप देखोगे कि यहाँ इस प्रिंट से ये आ गया टेम्परेचर कॉलन, वहाँ से वैल्यू रीड की उसने, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड थी वो, और फिर उसने दूसरा इसमें किया ह्यूमिडिटी कॉलन और ये 58%, ये दो वहाँ से रीड किए थे, ये यहाँ प्रिंट कर दिए और ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपने टेम्परेचर को
सेंसर डाटा की जो हमने अभी बनाई थी, सेंसर डाटा की डायरेक्टरी, यहाँ सेंसर डाटा की ये डायरेक्टरी, इसमें हमने इनिशियलाइज 0 से किया था। अब हम इसमें जो ये नई वैल्यूज हमारे पास फ्रेश रीट्राई करके अपडेट आया है, अब वो हम इसमें डाल रहे हैं इस डायरेक्टरी में। तो हमने वो डाल दी, यही दोनों वैल्यूज, टेम्परेचर जो भी आपने फ्रेश रीड किया वो, ये की डायरेक्टरी नेम के साथ की आप जब देते हो, जो इस केस में एक स्ट्रिंग है, तो यू आर पॉइंटिंग टू दैट लोकेशन इन डायरेक्टरी, वहां पर हमने टेम्परेचर को असाइन किया जो यहां से रीड किया। okay. इसी तरह सेंसर डायरेक्टरी में आपने दूसरी की ह्यूमिडिटी को, स्ट्रिंग को पॉइंट किया, और उस लोकेशन पर जो वैल्यू वाला पार्ट है उसमें ह्यूमिडिटी की जो अब वैल्यू आई है वो डाल दी। तो ये हमारा डायरेक्टरी अपडेट हो गई विद द न्यू डाटा। यहाँ न्यू डाटा कैप्चर किया, यहाँ प्रिंट किया, यहाँ डायरेक्टरी को अपडेट कर दिया। अब हमें, क्योंकि हम MQTT क्लाइंट को होस्ट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ओके, तो उसके लिए अब हम ये कनेक्ट कर रहे हैं अपने इस क्लाइंट को। तो हम कह रहे हैं ये क्लाइंट एक क्वेश्चन है मेथड कॉल किया डॉट कनेक्ट, होस्ट हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, सर। ये पोर्ट नंबर है, जिस सर? तरह पिछले उसमें हम पोर्ट नंबर 80 इस्तेमाल कर रहे थे, इस केस में पोर्ट नंबर इज 1883, ठीक। और ये टाइम है, जितने टाइम के लिए हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, फॉर एवरी 20। सर हेलो। हेलो जी, आप कुछ कह रहे हैं, क्वेश्चन? जी सर, मैं ये कह रहा था, ये जो डाटा, ये सेंसर डाटा है, ये डिक्शनरी है? मैं एक सेकेंड इसका माइक का बढ़ाता हूँ, एक सेकेंड ठहरिए, आपकी आवाज़ मुझे कम आ रही है, तो इसको मैं एक सेकेंड सेंसर डाटा, जो ये आपने सेंसर डाटा लिखा हुआ है, एक सेकेंड ये क्या बोलते हैं जी? मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। जी सर, आवाज़ आ रही है? जी अब ठीक है, हाँ आप बोलिए। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने सेंसर डाटा लिखा हुआ है, जो ये हमारी डिक्शनरी है ना, एजा? जी जी, यस, ठीक है। ये ओके, यही मैं बात कर ये रहा था। डिक्लेयर करवाई हुई है आपने सर? आप जी जी, ये अभी भी, डिक्लेयर? जी, ये इस पे ओके, लेट्स गो देयर। ये हमारा है सेंसर डाटा जी के जी नाम से हमने ये जी डिक्शनरी बनाई, और उसको जी इनिशियलाइज किया, दो हमें वैल्यूज इस डायरेक्टरी में, डिक्शनरी में डालनी थी। जी हमने उसकी कीज के नाम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रखे, यूजर जी। रीडेबल नेम इस्तेमाल करते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 डाली। ये देखिए जी कॉलम है, ये की है, ये वैल्यू है, बिल्कुल। ये जी कॉमा, दूसरा डेटा, ह्यूमिडिटी स्ट्रिंग, और ये जी इंटीजर वैल्यू। जी यहाँ इनिशियलाइज टू 0 किया था। अब आप इस 0 की जगह और इस 0 की वो जगह वैल्यू पुट कर देंगे रियल रीट्राई जो हमें करके जो वैल्यू मिली। कैप्चर वैल्यू की है वो आप डाल रहे जी हैं, ओके। जी पॉइंट करने के लिए की इस्तेमाल की, और डाटा वहां डाल दिया। ये काम हमने यहाँ जी। किया कि हमने ओके कहा सर। सेंसर डाटा की, और वहां ये वैल्यू जो अभी पड़ी थी वहां डाल दी। इसी तरह दूसरी, जी ओके, ओके सर। और अच्छा, अब हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्लाइंट हमने इसको किया था, उसको कनेक्ट के मेथड कॉल किया, होस्ट हमने डिफाइन कर दिया, पोर्ट नंबर हमने डिफाइन कर दी, टाइम हमने डिफाइन कर दिया, और अब फिर हमने ये कहा कि ये क्लाइंट जो तो जी, ये है, होस्ट और जो ये जो बाकी नंबर हैं, ये हर किसी के अपने अपने होंगे या एक ही होगा? नहीं, हर एक के अपने अपने, तो सिर्फ ये चीज होगी कि जो आपका एक्सेस कोड है, जब आप लॉग इन हाँ जी करते हो और वो आपको एक्सेस, वो तो जी आपका हर एक का अपना अपना होगा। सही है। लेकिन जिस तरह आपने ये बात कॉमन है, जिस तरह HTTP में आपका, जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर इस्तेमाल करते हो, तो एक ट्रांसपोर्ट के जी साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस कनेक्ट हो सकती हैं। जी जो भी एप्लीकेशन को आप सॉकेट के हवाले करते हो,
तो आप उस सॉकेट में उस एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर देते हो। एप्लीकेशन के नंबर को हम एक लिहाज से पोर्ट नंबर कहते हैं, जो हम जी सॉकेट में HTTP में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जी ये पोर्ट नंबर बहुत से केसेस में, अब ये जब वो बन रहा है और आप उसको असाइन कर रहे हो उस सॉकेट को, तो वो पोर्ट नंबर आप उसको डिसाइड करते हो। बहुत सारी जी चीज़ों में ये यूनिवर्सल पोर्ट नंबर हैं कि वेब सर्वर 80 होगा, ईमेल उसका 6 फला होगा। इस तरह जो हमारे स्टैंडर्डाइजेशन के प्लेसेस हैं नेट में, उन्होंने उनको यूनिवर्सली डिफाइन कर दिया है कि यार ये पोर्ट नंबर इसके लिए इस्तेमाल करो, ताकि सारे लोग जब वो वेब सर्वर पब्लिक डोमेन का बनाए तो वो पोर्ट नंबर इस्तेमाल करें। जी इसी कैटेगरी में हमने पिछले जो अपने प्रोग्राम में देखा था कि वो पोर्ट नंबर 8080 इस्तेमाल हो रहा था, जिस जी केस में वो वाले थे कि जो जैसे वो इंटरनल लूप बैक का था, है ना। अच्छा, एक बहुत बड़ा पोर्ट नंबर का डोमेन है कि लोग अपनी एप्लीकेशंस को जब यूज करेंगे तो उस ब्लॉक में से वो अपने पोर्ट नंबर दे सकते हैं, जेनरेट लेकिन कर सकते हैं। जी वन पोर्ट नंबर इज असाइन टू वन एप्लीकेशन। और अगर जी वो एप्लीकेशन उस सर्वर पर कोई भी यूज कर रहा है तो उसको वही पोर्ट नंबर इस्तेमाल करना होगा। इट्स लाइक द एप्लीकेशन आईडी, ठीक है। जी तो ये तो मुमकिन था कि जो इसको बना रहा है ये होस्ट, अगर वो तय करता कि मैं ये जो डैशबोर्ड में ये सर्विस जो डाल रहा हूँ एप्लीकेशन, इसका पोर्ट नंबर मैं 1883 की जगह सपोज मैं कहता हूँ मैं 1885 रखता हूँ, ये उसका डिसीजन है। जी और अगर ये उस रूल की खिलाफ वर्जी नहीं है जो स्टैंडर्डाइजेशन वालों ने की है, तो वो कर सकता जी है। लेकिन जब उसने जी एक दफा वो कर दिया और अपने सॉकेट के लिए आइडेंटिफाई कर दिया, अब जिसने भी इसको यूज करना है उसको यही पोर्ट नंबर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सही ओके, जी जिस सर तरह आपको अच्छी तरह पता है कि वेब के लिए उन्होंने 80 कह दिया, आप भी कोई भी पब्लिक डोमेन का वेब बनाएगा तो 80 करेगा, तो हर लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अदरवाइज पीपल बिल्कुल इफ दे यूज अदर पोर्ट नंबर वो नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। ये वो है। ओके, जी सर चलिए, ये इसके साथ ये टाइम आ गया। अच्छा, ये अब आप पब्लिश करने के लिए आपने यहाँ पर उसका ये पाथ दे दिया, ये V1 डिवाइसेस मी टेलीमेट्री, और फिर यहाँ पर आपने वो डाटा बता दिया json.dumps करके, ये सेंसर डाटा जो आपने अभी बनाया है वहाँ से कैप्चर किया है, ठीक। यहाँ पर आपने वो डाटा पब्लिश करने के लिए प्रोवाइड कर दिया इस क्लाइंट को बाय कॉलिंग द मेथड पब्लिश। जी और फिर अब आपने क्लाइंट को कनेक्ट किया, क्लाइंट को पब्लिश करने का डाटा दिया, क्लाइंट को डिस्कनेक्ट कर दिया, और फिर सही there is a gap of this 10 seconds you gave that again, स्लीप ठीक। ओके, ये सर जो हमारा ये आउटपुट। पास जो भेजा है इसने पब्लिक को, ये कौन सा वाला पास है? मतलब कि हमारे कंप्यूटर वाला होगा या दूसरा है सर्वर का होगा? सर्वर, देखिए, सही ये आपका ये क्लाइंट है, ये पब्लिश जी कर रहा है और अपना ये सेंसर डाटा दे रहा है अपने जी इसके इसके क्लाइंट का, ये उसका ये वर्जन है, ये उसके अंदर ये डिवाइस की है, और ये आपका टेलीमेट्री का डाटा है जो उसने ये उसके जब हमने ये इंस्टॉल किया है तो उसने जी क्लाइंट और सर्वर दोनों का पार्ट आपके पास इंस्टॉल हो गया जब आपने इसको इंस्टॉल किया, जी ठीक है। जी तो हाँ, अब आप ये सेंसर डाटा भेज रहे हैं अपने पाथ से उसको पब्लिश करने के लिए, सही ठीक। सही ओके, अब ये आपका ये प्रिंट हो गया। अच्छा, 10 सेकेंड्स, ओके, ये आपका वो डाटा उस पर वो कमेंट कर रहा है कि देयर शुड बी जी एवरी 10। ये आपने ये गैप क्योंकि यहाँ डाला है और ये लूप रिपीट हो रहा है, तो एवरी 10 जी सेकेंड्स के बाद ये डाटा का अपडेट भेजा जाएगा। ये क्लाइंट डाटा जी का अपडेट एवरी 10 सेकेंड के भेजा बाद जाएगा भेज देगा, जी ठीक है। ये आपके कंट्रोल में है कि कितनी देर बाद आप डाटा को अपडेट करना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू कीप इट टू फास्ट, too much of data flow or update rate होगा, depending on how frequently there is a need,
ठीक है, अगर कोई स्लो चेंजिंग जी। चीज है और आप उसको, तो आप कम से कम रखना चाहेंगे, मगर इतना कम भी नहीं रखेंगे कि आपकी मिस हो जाए कोई इंपॉर्टेंट चीज। तो ये इट्स योर जी। चॉइस, यहाँ पर उसने 10 सेकंड का चॉइस लिया। ओके सर। ओके, तो अब डैशबोर्ड थिंग्स बोर्ड में क्रिएट करना है। उसके स्टेप्स यहाँ पर दिखाए गए हैं विद दी आपको पिक्चर्स के साथ, कि भाई वो क्या स्टेप जी। चाहिए। कि ह्यूमिडिटी वैल्यू का के लिए डैशबोर्ड पर आपने शो करना है, तो क्या करेंगे। तो आप फिर थिंग्स बोर्ड क्लिक ऑन द डिवाइसेस, जो आपने पहले ही डिवाइस का वो बनाया था, आपने उस पर क्लिक किया, और फिर रूम कंडीशन पे क्लिक किया, ये आपने बनाया था, तो अब आपने उस पर जी। क्लिक किया। तो जी। फिर उसको ये साइड मेन्यू पर ये आपका आ गया रूम कंडीशंस। डिवाइस की जी सर। डिटेल्स के लिए अगर आप चाहिए तो क्लिक कर सकते हैं। लेटेस्ट टेलीमेट्री डाटा, ये जो आपने उसको पब्लिश करने भेजा था, जी। आपने पहले वहां डिवाइस बना, ओके, अच्छा, तो आपने जी। डिवाइस बनाई थी, तो अब आपने जब पब्लिश करने के लिए डाटा भेजा और आपने वही रूम कंडीशंस को दोबारा ओपन किया, तो अब वहां पर ये डाटा है, ये लेटेस्ट टेलीमेट्री डाटा। तो ये आपको ये की और ये वैल्यू, ये ह्यूमिडिटी, ये टाइम के अपडेट किस वक्त भेजा आपने, ह्यूमिडिटी 57 वैल्यू थी, टेम्परेचर 23 वैल्यू थी, और ये उसका टाइम। तो अब ये वहां पर आपके उस डिवाइस के उसमें पब्लिश हो गया ये डाटा। जी सर। अच्छा, अब टैब आपने देखा, उस पर आपने ओके, ह्यूमिड टेम्परेचर, these values are last updated, humidity आपने select कर लिया on the left, और हाँ ओके ओके। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ चाह रहे हैं कि ये अब डाटा राइटिंग में, तो वहाँ पर जो आपने बॉक्स बनाया था उसमें शो हो गया, लेकिन जो हम कह रहे हैं ना डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट है कि जो आप पिक्टोरियली भी उन चीज़ों को डायल्स और बटन्स भी देखें, और उसके लिए जैसे हमने साइट पे एक देखा था ऑप्शन विजेट्स का, कि आप उस चीज को शो करना चाहते हैं स्मॉल जी। पिक्टोरियल वे में। तो अब आपने उस दोनों डाटा में से एक को शो करने के लिए आपने यहाँ क्लिक किया, सिलेक्ट किया उसे, बिकॉज यू वांट टू शो इट ऑन ए डायल। तो ये लिख चॉइस किया शो ऑन ए विजेट, तो ये आ गया। जी सर। ये उसने एनालॉग वाला गेज दिखाया, डिजिटल, उसके अंदर डिजिटल वैल्यू भी है 55, और एक डायल की शक्ल में अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने इस शक्ल में देख लिया। तो ये आपको उस पर जी मिल सर। गया। तो आपने ऐड टू द डैशबोर्ड बटन, इस बटन को प्रेस कर दिया ताकि ये डैशबोर्ड का हिस्सा बन जाए। जी। फिर आपने ये वाला किया, ये डैशबोर्ड के साथ आपने कर दिया एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड, आपने सेलेक्ट क्रिएट रूम कंडीशंस। अच्छा, अब आपने यहाँ पर उसमें दूसरा वाला ऐड किया, जो था आपके पास टेम्परेचर वाला, उसको भी ऐड जी सर। किया, और फिर दोनों को इकट्ठा देखा, और ये दोनों आपको यहाँ पर ये नजर आ गए, बारी बारी दोनों को आपने कनेक्ट करके ऐड कर दिया। तो यू कैन कीप एडिंग जो टेक्स्ट वैल्यूज हैं बाय वन सिलेक्टिंग देम एंड सिलेक्टिंग द विजेट टू शो इट। जी सर। ठीक है, बस दैट्स इट, और इसमें कोई चीज़ नहीं पिक्टोरियली देखने के लिए। अच्छा, अब आपने डैशबोर्ड को शेयर करना है, यानी वो तो एक्चुअली आपका एक वेब पर आपने एक इंफॉर्मेशन को डाल दिया है, वो इंफॉर्मेशन अभी तक आपके लिए थी। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों को भी उसको विजिबल कर दें, या जैसे आप होम सिक्योरिटी का देख रहे हैं और आपने पहले अपने उससे बनाया, यू वांट टू शेयर इट विद योर अदर फैमिली मेंबर टू टेक केयर ऑफ दैट,
तो मे बी फॉर योर वाइफ और अदर एनी ब्रदर सिस्टर, तो आप उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं विद दैट फ्रेंड। तो उसका अब यहाँ पे तरीका बताया है ताकि वो जी भी सर। देख सकें। तो आप उस गए फिर दोबारा डैशबोर्ड स्क्रीन पर, और आपने ये डैशबोर्ड्स का सिलेक्ट किया, और फिर आपने कहा मेक डैशबोर्ड पब्लिक। असल में ये ऑप्शन आपने इस्तेमाल किया कि अब आप इसको पब्लिक कर रहे हैं। ये रूम कंडीशंस वाला खुला, इसमें ये बटन ये आया कि भाई डू यू वांट टू मेक द डैशबोर्ड पब्लिक, तो आपने क्लिक किया तो डैशबोर्ड पब्लिक हो गया। Is now public as shown in screenshot. Okay, paste the URL or share it via social media. तो अब आप इसको इस URL को आप फिर सोशल मीडिया के ऑप्शन से शेयर कर सकते हो और बता सकते हो। अब ये आ गया डैशबोर्ड इज पब्लिक। ये लिंक का ऑप्शन, ये उसके पाथ की डिटेल, और एक्सेस दे रहा था। हाँ ओके, डोंट फॉरगेट टू मेक रिलेटेड डिवाइसेस पब्लिक इन ऑर्डर टू एक्सेस द डाटा। यानी अगर आपने इसके डाटा को एक्सेस करने का राइट देना है, तो आपकी जो रिलेटेड डिवाइसेस हैं जो आपने अभी इसमें बनाई थी, और उसके साथ वो भी विजेट्स भी दिए थे, तो आपने उन्हें भी पब्लिक करना है। ओके, दैट अभी तक हमने ये वाला पार्ट किया। सिर्फ उसका पार्ट 1 जो था कि भाई क्या MQTT के ज़रिए से हम अपने रेस्पबेरी पाई के सेंसर डाटा को नेट बेस्ड डैशबोर्ड पर डाल के पिक्टोरियली दिखा सकते हैं या नहीं, और उसको शेयर कर सकते हैं उस डैशबोर्ड को विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो ये काम अभी हमने किया है। अभी हम अपना होम सिक्योरिटी में इसको इंटीग्रेट करने वाले एस्पेक्ट अभी जो हमने बनाया हुआ है उसके साथ वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो और एस्पेक्ट था कि अगर इस डैशबोर्ड में, अब जैसे आपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देखी है, एक तरीका ये था, यानी इट बिकम्स अ वर्किंग सिस्टम आपके पास आ गया। एक तरीका ये था कि आप बार बार ओपन करें थ्रू योर ब्राउजर, आप देखें डैशबोर्ड को और आप कहें ठीक है, थिंग्स आर ऑल राइट, टेम्परेचर इज ओके, फलाना इज ओके। समटाइम्स पीपल यूज सच सिंपल टॉय प्रोजेक्ट्स में कि आपने चाइल्ड सेफ्टी का जो बनाते हैं कि भाई अगर चाइल्ड अकेला है, यू आर इन द ऑफिस, और आपने जिस कमरे का है ख्याल रखना है कि टेम्परेचर बहुत गर्म ना हो जाए, बहुत ठंडा ना हो जाए, और यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ इट, ठीक है। तो आप और पिक्चर कैमरा भी आप लगा सकते हैं और आप देख रहे हैं, और आपने अब आप एक तरीका था कि आप बार बार इसको देखते हैं, मगर यू डोंट लाइक डू दैट। आप चाहते हो कि अगर किसी वजह से आप गैप है आपके देखने में तो आपको अलार्म मिल जाए। अलार्म के लिए फिर ये हमारा ऑप्शन है जो हम जिसको अभी जिसके हम डिटेल देख रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास को टेक्स्ट मैसेजिंग का हो, जो हमारे ये सेंसर रेस्पबेरी पाई डायरेक्टली जब देखेगा यार ये टेम्परेचर तो क्रॉस हो रहा है, वो ठीक है कि वो डाटा वहां तो भेज रहा है, भेजता रहेगा, मगर वो आपको भी अलार्म कर दे आपके मोबाइल पर, आपको कहे कि भाई देखो टेम्परेचर हैज क्रॉस्ड और ह्यूमिडिटी इज टू हाई और सम इंट्रूडर हैज एंटर्ड और थिंग्स लाइक दैट। तो ये अब उसके लिए टेक्स्ट मैसेजिंग की ट्रांसमिशन करने का पार्ट हम देखना चाहते हैं। ओके, तो टेक्स्ट मैसेजिंग ट्रांसमिशन सर्विस जो हमने बताया था कि वी विल यूज दिस ट्विलियो, और उस पर अकाउंट खोलेंगे और उसको उससे वो इसको इसमें क्या होना है कि अब आपका ये जो रेस्पबेरी पाई का यूनिट है, इस पर इसकी रिलेटेड एपीआई मौजूद होगी, जिसके ज़रिए से एक सोर्स ऑफ टेक्स्ट मैसेज और नंबर ये होगा एक एंड पे बजाते खुद, और दूसरे एंड पर वो डाटा लेगा और वो उस मोबाइल नंबर जो आपका है उसको वो कनेक्ट करेगा। ये ट्विलियो का जो सर्वर है ऑन द नेट, ये इन दो को इस तरह से कनेक्ट करेगा और ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, और चार्जेस अपनी सर्विस के लेते हैं, और उसमें आप उसका जो फ्री फेज और मोड है उसको इस्तेमाल करके
where you can benefit from the service. तो ये अब इसके चीज़ें हैं, जैसे थ्रू द यूज़ ऑफ इस वेब सर्विस API, तो अकाउंट खोलेंगे आप, तो नेविगेट, आप ब्राउज़र में गए, आपने ये देखा, ये स्टूडियो का साइट पे गए नेविगेट करके, और टॉप राइट कॉर्नर पर जो उसने रेड साइन दिया हुआ है उसको आपने क्लिक किया, तो वो आपको ये दे देगा कि वो कहेगा आपके कि जी अप्रोप्रिएट पर्सनल इंफॉर्मेशन दें और पासवर्ड एक्सेट्रा, ये स्टेज पर वो आपको अकाउंट आपका बना रहा है। और फिर ये चीज़ें भी ऑप्शन है कि SMS, अराइवल अलर्ट्स एंड पाइथन फॉर द फील्ड्स। जब पासवर्ड वगैरह ये आपसे ले लिए तो फिर ये वाले ऑप्शन लेगा कि भाई आप किन किन चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पर है ये एक उसकी पिक्चर है कि साइन अप के लिए ये आपसे इंफॉर्मेशन ली है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि SMS के लिए यूज़ करना है, अराइवल अलर्ट्स के लिए करना है, और एक उसने ये पाइथन बेस्ड आपका एनवायरनमेंट है। तो ये चॉइसेस इनमें हैं मुख्तलिफ, हर एक केस में हमारा वाले चॉइसेस ये हैं कि हम ये करना चाहते हैं। वो फिर वो जो आर यू नॉट अ रोबोट, तो क्लिक कर दें आप, तो ये गेट स्टार्टेड, तो ये आपका, तो आपका साइन अप, लेट्स से फ्री साइन अप आप जो कर रहे हो उसमें ये सारी अपनी इंफॉर्मेशन, पासवर्ड एंड ये यूजेज का डाटा आपने दे दिया और आपका अकाउंट इसमें बन गया। जैसा कि हमारा एम क्या है कि सर्वर के जरिए एक एंड पे रास्पबेरी पाई, दूसरे एंड पे हमारा मोबाइल, इन दो को करना है। तो वो पूछ मांगेगा और आप प्रोवाइड करोगे कि वो फ़ोन नंबर जो आपका मोबाइल का है, जिसके ज़रिए से अथोराइजेशन, आप अपने मोबाइल का फ़ोन नंबर उसको चाहिए, ठीक है। तो ए फ़ोन नंबर टू रिसीव एन अथोराइजेशन कोड वाया SMS, अभी आपको वो रजिस्टर कर रहा है, दूसरे एंड पे आपके मोबाइल का नंबर अथोराइजेशन उसे चाहिए, तो उसको आपने वो अथोराइजेशन कोड भेजेगा। जैसे हम जब अकाउंट खोलते हैं बैंक में, तो पहले आपको ये देखने के लिए कि आप दूसरे एंड पर रोबोट नहीं है, तो वो इस तरह से आपको अथोराइजेशन कोड भेजता है वाया SMS जो आपको मिला। फिर आपने उस अथोराइजेशन कोड को एंटर किया तो आप उसका उसके वो बन गए। सो नीड टू वेरीफाई दैट यू आर ह्यूमन, तो आपने अब अपना ये फ़ोन नंबर डाला, तो फिर वेरिफिकेशन कोड SMS नंबर के ज़रिए से मिला और आपको आप अकाउंट होल्डर हो गए। तो वेरीफाई, फिर वो SMS के ज़रिए से वेरीफाई करेगा। तो उसने वो कोड भेजा, कोड से आपसे नंबर लिया, फिर कोड भेजा और अब आपको अकाउंट खोल दिया। So now you have the account and the server has your mobile number where server will send the message. Authorization code ये आ गया, authorization code ये भेजा, फिर वर्क इस केस में ये असल में हम इसको आगे, ये जो आपका होम सिक्योरिटी वाला है उसमें आपको डोरबेल के लिए भी इसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसने इस स्टेज पर ही वो डोरबेल का नाम को इस्तेमाल कर लिया और कंटिन्यू कह दिया, प्रोजेक्ट का नेम देने में। ओके, in order to interact with it and get a सर जी 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 सर ये लेक्चर के बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, मैंने लेक्चर नंबर 21 से क्वेश्चन है। अच्छा, ओके, ऑलराइट, ठीक है। हम करते हैं, मैंने शुरू में ये बात हमेशा पूछता हूँ, दैट वाज अ गुड टाइम, लेकिन अभी हम ये रख लेते हैं कि लेट मी सी कि हमारे पास कितना है टाइम। ओ हो, अच्छा टाइम हो गया, ओके ओके, अभी आई स्टॉप है, हम इसको जारी रखेंगे, आप क्वेश्चन पूछ लें, ठीक हो गया, हमारा टाइम क्योंकि हो चुका है। आप 21 का क्वेश्चन पूछिए, विल कंटिन्यू विद दिस इन अवर लेक्चर नंबर 21 है सर, उसमें आपने दिया हुआ है एक, बस मैंने सिर्फ एक चीज़ पूछनी है कि आपने दिया हुआ है वहाँ पे लाइब्रेरी फ्रॉम सिक्योरिटी डाटा इम्पोर्ट सिक्योरिटी डाटा, वो चीज़ पूछनी है। फिर मैं दूसरा उस पर रास्पबेरी पाई वाले कोड पे जाता हूँ, वहाँ पे आपने
वही चीज यूज की हुई है, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं की हुई कहीं पे, अच्छा अलग अलग है। ओके, वो अभी आप लेक्चर नंबर 21 निकालेंगे, मैं आपको पेज स्लाइड नंबर बता देता हूँ। ठीक है, मैं ये लेक्चर 21 को खोलता हूँ। लेक्चर 21, जी बताइए। हाँ बोले। सर ये लेक्चर स्लाइड नंबर है इसका, स्लाइड नंबर 20, ये आ रहा है 20, रुकें, 20 आ रहा है, स्लाइड नंबर 20 पे लिखा हुआ है, ये स्लाइड नंबर 20, ये जी, ये सर, ये ओके एक तो ये किस चीज़ की कहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि नीचे भी डैशबोर्ड दिया हुआ है, तो ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो रही, एक ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, और एक आ रहा है स्लाइड नंबर 26 पे, अच्छा ओके जी स्लाइड नंबर 26 पे यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल ट्रू के बाद ये डिक्लेयर करवाया हुआ है। अब ये उधर वाला डाटा उठा रहा है या इसका अपना डैशबोर्ड है जो उठा रहा है, सिक्योरिटी डाटा क्लास उठा रहे अच्छा ओके ये दो अच्छा चीजें बनी हुई ओके ठीक हो, ये यहाँ पे इसको कर लेते हैं। अच्छा एक ये है, पहली चीज तो आपको ये रहे कि हम ये जो सारे वेब के ऑप्शन देख रहे हैं, इनके जी हमने शुरू में एक होम सिक्योरिटी का बेसिक मैकेनिज्म बनाया और हाँ जी उसको हम बिल्कुल हर लेवल पर एनहांस कर रहे हैं। हर लेवल पर एक एनहांसमेंट हो रही है और उसका एक अपना नाम भी आ रहा है। मगर वो जो जी पिछला है जैसे क्लास, और ये इसका बेनिफिट ही यही होता है कि आप वो अगली नए मेथड्स डालते हैं और पिछला जो कुछ अवेलेबल है उसको एज ए लाइब्रेरी कॉल करके इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जी जनरल तो ये है सिनेरियो। अब हम इस पे स्पेसिफिक पे आ जाते हैं, इस केस में क्या एनहांसमेंट हुई है और इसका पिछला कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। इसके आप यहाँ से अगर हम, ये अभी सर्वर वाले पे हैं, इससे पिछला जी हमारा वो जी था पब्लिशिंग का ना। अच्छा सर्वर वाले में हाँ जी, हमने ये बोला तो ये क्लियर हो गया सर। पार्ट एडेड है जो आप ऐड कर रहे हो जी ना सर्वर्स के। अच्छा जी जी बिल्कुल। ये तो हो गए जो सर्वर बनाने वाले पार्ट है। अच्छा जी यहाँ ये भी हो पर, गया। अच्छा नहीं यहाँ पर अब आप बोले ना, यहाँ पर आपने वेदर डेटा के लिए ये जो क्लास है, ये आपने जी पिछली जो नहीं बनाई थी, फ्रॉम वेदर इंपोर्ट वेदर, ठीक है, ये जी तो आपने वहां से ले लिया, ये तो उस क्लास से आ गया ना। बिगनिंग में बनाई थी वेदर और यूनिट का करके वेदर के इंफॉर्मेशन की एक, अब आप उसको फिर हमने वेदर डेटा विद फ्यू एडिड थिंग्स किया था, वो ये वेदर डेटा वाला है यहाँ पे, ये वेदर डेटा जी जिसमें ये पैरामीटर्स किए थे, और यहाँ हमने कुछ टाइम का एक ऐड कर दिया था इस केस में, ये सी टाइम, ये सी टाइम ऐड किया था। जी इससे पहले एक कोड था उसमें हमने सेल्फ सिटी ऐड किया था, लेकिन बाकी चीजें वही थी। तो ये वेदर डेटा के लिए ये हमारी क्लास है वेदर डेटा की। जी अच्छा और इसको हमने यहाँ यहाँ क्या किया कि करंट वेदर के नाम से इंस्टेंशिएट किया इस जी वेदर डेटा को लंदन के लिए, तो करंट वेदर। जी अब इस करंट वेदर से मेथड्स कॉल करके, ये देखो क्योंकि मेथड्स तो यहाँ मौजूद हैं, जी हमने क्या बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें प्रिंट की। तो अब हम ये जी मेथड्स हमारे वेदर डेटा के एज ए करंट वेदर ऑब्जेक्ट के तौर पे हमें मौजूद है और हमने यहाँ प्रिंट किए हैं, इनको हम यूज भी कर सकते हैं। ये हो गया। जी अच्छा चलिए अब हम इसी में चले जाते हैं आगे। अच्छा ये आपने यहाँ पे कोई और खास बात नहीं थी, जैसे मैं बताया ये तो HTML के यूजेज का है, जो अभी जब आप जी प्रोजेक्ट सर, कर रहे ये हो। जैसे ऊपर लिखा हुआ है फ्रॉम वेदर डाटा। अब क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये है कि जैसे ऊपर वाला एक क्लास बनी, ऊपर वाला एक कोड है, वो अलग रहेगा या इसको ये किस तरह से उसको उठा लेगा उस डाटा में से, मेरा नहीं सिर्फ ये क्वेश्चन है। हाँ हाँ नहीं, एक तो हम, या तो हम सारे पाइथन वगैरह के कोड तो हम एक जगह डाल रहे हैं पूरा पाइथन का, और हाँ जी उसी फोल्डर में, ये उसने शुरू में ही बताया था जब हम पीछे कर रहे थे, जब आप ये करोगे ना ये वाला, यहाँ पर ही उसने कहा भी है और हमने भी आपको बार बार बताया कि इसी केस में जब ये सिंपल केस कर रहे हो ना, तो यही उसने जी आपको ये बता दिया कि आपका एक फोल्डर है उसमें सब फोल्डर्स हैं,
एक फोल्डर में आपके पाइथन के जी कोड हैं, और HTML क्योंकि आपका जी अलग फाइल है, तो आप .html की फाइल जी बनाओगे जिसमें HTML का डेटा होगा, और आपका उसी में जी उसी फोल्डर में सब फोल्डर एक ही जगह होना चाहिए। एक ही फोल्डर में जी दोनों का होना लाजमी है, लेकिन जी HTML की फाइल अलग और पाइथन की फाइल जी अलग। ठीक। बिल्कुल जब ऐसा ही। आप उसमें वो HTML का हम पेज कॉल करते हैं ना, तो वो HTML से लिंक होके उस पेज से वो चीजें या डिस्प्ले करेगा या यूज करेगा। जी तो जी yes, they are at the in the same folder, but HTML जी part and Python part are separate files. जी Okay, यस सर। all right. समझ आ गई है सर। Okay, any other question, please? ना सर। सर Okay, बस एक क्वेश्चन है कि जो हमारा पेपर होने वाला है 6 जनवरी से, तो आज का भी लेक्चर इंक्लूड है? बिल्कुल है। ठीक हो गया। अच्छा चलो, ओके, होल्ड ऑन। देखो, ओके, आज का लेक्चर एग्जाम के एंगल से शामिल नहीं है, लेकिन जी देखिए हमारे एग्जाम भी, ओके, आज का लेक्चर उस, क्योंकि आपका आपकी सबमिशन जो है वो पिछले प्रोजेक्ट तक है, एग्जाम से पहले जी आपकी सबमिशन जो है ये सर्वर तक की है। तो एग्जाम जी के लिहाज से आपका सर्वर, जिसका प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर चुके होगे, वो शामिल है। इम्तिहान में आज का ओके शामिल नहीं है। ओके, ये क्लियर सही हो। है। अब लेकिन हमारा, आप ओके देखेंगे इम्तिहान में भी हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में है, जो भी होंगे मिड टर्म फाइनल, जी आपको मालूम है कि हमारे तो एग्जाम भी प्रोजेक्ट से पढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट से हम आपको एवेलुएट करते हैं, प्रोजेक्ट्स का ही हम आपका एग्जाम लेते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स का बिल्कुल एग्जाम का लर्न करना और प्रोजेक्ट्स का लर्न करना इन सिनोनिमस। तो ओके, जी सर 6 के एग्जाम में आज का लेक्चर शामिल नहीं है। अप टू द सर्वर जी थिंग है, जो आप उससे पहले सबमिट कर चुके होगे, और वहां तक कोर्स है। जी ठीक, ओके, जी सर। ऑलराइट। ओके एनी अदर जी क्वेश्चन? थैंक यू सर। ओके, ना सर। वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।